हेलो। यस। हेलो। यस सर, आ, बोलिए। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज पहुंच रही है, हर जगह पहुंच रही है। ओके, थैंक यू वेरी We, मच। we are listening, sir. Very nice. So first of all, my adab, namaskar, sasikal to everybody, those who have joined this semi-virtual national conference on environmental pollution, causes, effects, status, and remedies. And this is being organized under Vishwanath Summit 2021, organized by Vijayalakshmi Vishwanath Dalvi College and Rusa, Maharashtra. I express my gratitude to all of you, and particularly to my very close friend, Dr. Dalvi, who has asked me to be here this morning to share my brief views on this subject of environmental pollution and to be associated with this important semi-virtual national conference. I'm also very much thankful to my Unifest family group as being one of the organizers in the form of supporter. My grateful thanks to Professor Irshad Ahmed Khan from Punjab, Malerkotla. Another Dr. Professor Ranjita Chatterjee ji from Pune, who has been coordinating many activities for this conference for the past several days. And I heard that yesterday also they had a Zoom meeting to organize, facilitate various arrangements. My also grateful thanks to Dr. Venkat Ramlan, who is the director of SCS and VVNV deemed University, Tamil Nadu, for chairing one of the sessions. All the chairmen of various sessions and the panelists and all my dear participants. In fact, there are many names that I have in my mind, but due to paucity of time, I would like just to be on the topic and to address some of the points. My friend Pabrekar ji is there, who I love so much because we have been there for more than 30 years, like Dalvi Saab, who is very, very close to me. अकबर भाई का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, फादर की डिसूजा और प्रभाकर देसाई साहब. Many, many thanks. In fact, this is such an alarming subject or the topic that we have been given to be associated with this national semi-virtual conference. The environment, the word itself, I think this is from the etymological or from the root environia. I think this is the word in French from where this has been derived, and which means anything that is surrounding us. Meaning, in the, like in Urdu, we say mahal, ya paryavaran. This means that whatever is living, this means biotic or non-living, abiotic. All those things, they are associated with this environment. This also includes physical, chemical, and other natural forces. Living things, as we all know, they live in their environment and they constantly interact with each other and adapt themselves to condition in their environment. Like Akbar Bhai just mentioned from Quran, that पूरी मखलूक़ात को खुदा ने बनाया या ईश्वर ने बनाया, और इवन क्रिश्चियनिटी के या दूसरे ग्रंथों में भी लिखा होगा, लेकिन क्रिश्चियनिटी की जो बाइबल है, बाइबल मीन्स ए बुक ऑफ मेनी बुक्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड बिब्लॉस, यानी कि 66 बुक्स आर देयर इन ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट. एंड द फर्स्ट वर्स, पहली आयत जो शुरू होती है, तो उसमें यही लिखा है कि इब्तिदा में खुदा ने आसमान ज़मीन को बनाया. और फिर उसके बाद इलाबोरेट करते हुए बाइबल के अंदर भी ये लिखा है कि उसने तमाम ये जो चीज़ें हैं, मखलूक़ात या सृष्टि या क्रिएशन जो भी बनाई है, खुदा ने इस तरीके से साफ सुथरी तरीके से चांद, सितारे, नदी, नाले, पानी, पेड़, परिंदे, आदमी,
और आदमियों को, इंसान को सबसे ऊपर, he was the preeminent, he is the biggest, so उनको बनाया. So this is the environment, and there are different interactions between animals, plants, soil, water, and there can be other living and non-living things, as I said, biotic and abiotic. So like अब तो हम environment को बड़ा एक जनरल सेंस में भी बोलते हैं. It is not in a very particular way. कई बारी हम यूज करते हैं कि भाई जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनवायरनमेंट, जिसका मतलब है द रेडियो वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसी तरीके से हम यूज करते हैं हमारी साइकोलॉजी में. कभी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, या चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, या सोल हीलर हो, कोई भी, whenever we are going, so भाई इनकी साइकोलॉजी एंड मेडिसिन, उसको भी कहीं दिमागी क्लाइमेट, दिमागी एनवायरनमेंट, ये भी एक ताजुब की बात है, इसको लीजिएगा पर्टिकुलर उसमें लेके, तो इनका दिमागी माहौल जो है, एनवायरनमेंट, दैट इज अफेक्टिंग दैट पर्सन, और उनका बिहेवियर, बॉडी, माइंड एंड हॉल, द ऑल दीज थिंग्स आर affecting. So the subjects that we are going to have discussion throughout, that we are going to have environmental pollution, causes, effects, status, and remedies. We know very well this is crisis has been going on for a very long time. And while the crisis has been many factors, in fact, they are playing a role in the exasperation of or increasing this. There are some there are very important, like I would like to say, the poor governance, food wastage, biodiversity loss, plastic pollution, deforestation, air pollution, agriculture, etc. So this means that the environment and ecology, this is the term of environment. As I said, this has been derived from environia, which is means surrounding. और surrounding जब हम कहते हैं, कोई भी फिजिकल, नॉन फिजिकल या नॉन लिविंग, लिविंग कोई भी चीजें हैं, वो हम उनको, मैंने आपको बताया कि सारी हमारी एनवायरनमेंट का ही एक पार्ट है. लेकिन अगर हम, और जिस तरीके से मैंने जो प्रॉब्लम्स आपको बताई हैं, एक तो माइक्रो लेवल पे, एक मैक्रो लेवल पे. माइक्रो पे तो जो इमीडिएट हमारे साथ है, हमारा फैमिली है, हमारा घर है, हमारा समाज है, दे आर सराउंडिंग एंड कॉजिंग इफेक्ट. जो भी ऑर्गेनिज्म जो कि हमारा एक्सटर्नली या फिजिकल उस पे है, मैक्रो लेवल पे देख लीजिए कि एनवायरनमेंट मींस ऑल द फिजिकल एंड बायोटिक कंडीशंस दैट सराउंड द ऑर्गेनिज्म एंड एक्सटर्नली. ये सारी चीजें जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ये हमारी तमाम एनवायरनमेंट को, जो आज की टॉपिक को हम देख रहे हैं, उसको दिखा रहा है. इस पे कई चीजें, जैसे मैंने गवर्नेंस का बताया, पूरे वर्ल्ड के अंदर यूनाइटेड नेशंस से मान लीजिए, या बड़े कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन खासकर है जिस पे है. हम देखते हैं कि बड़े लेवल पे देखें तो अमेरिका है, चाइना है, इंडिया भी अब उसका पार्ट बन गया, कि इस तरीके से हमारे जो कि डिसिप्लिन होना है एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए, या दूसरे किस्म के पोल्यूशन या एनवायरनमेंट की सेफ्टी के लिए जो कदम उठाने चाहिए, वो अभी नहीं हो रहे हैं. इस पे एग्रीकल्चर का भी पार्ट आ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग का आ जाता है. ग्लोबल वार्मिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, दोज आर विद द साइंस बैकग्राउंड, दे नो इट प्रीटी वेल. हम जानते हैं कि जिस तरीके से ग्रीन हाउस गैसेज आर बीइंग प्रोड्यूस्ड by the temperatures which is being caused in the recent past, this is so catastrophic. हम जानते हैं कि अभी recently last 10 दिन पहले ही there was a huge bushfire in Australia. Likewise, earlier also 2 years back, this bushfire, the whole of Australia, this is burned and destroyed all the animals and the agriculture and trees and whatever. In the same way, I think, in a recent past and earlier also, like in California, like in many other places, this is all the things that are being destroyed
while we are not keeping ourselves with the preservation. So poor governance, this is one of the reasons. And then in poor governance, ये जो emission का part है, emission of the carbon dioxide, carbon etc. इसके ऊपर कई देशों ने तो taxes लगाए हैं. They have implemented in 25 countries at least I have studied, like European Union मैंने बताया, Canada है, Singapore, Japan, Ukraine, Argentina है. They have levied these current taxes to check this emission और जिससे कार्बन वगैरह और या ग्रीन हाउसेस आ जाती है. देन फूड वेस्टेज का मैंने इस तरीके से बताया कि किस तरीके से एक स्टडी कहती है कि फूड वेस्ट एंड लॉस अकर्स एट डिफरेंट स्टेजेस इन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज. इट इज अमाउंटिंग टू अबाउट 40% ऑफ फूड वेस्टेज अकर्स, जो कि एट द पोस्ट हार्वेस्ट एंड processing levels, while in different countries 40% of food wastage occurs at the retail and consumers levels. This is a matter of great concern. Meticulously these are checked, then this will be a great I think sign that we can preserve our environment. Biodiversity loss इस पे बहुत आ जाता है. हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉस का तो हम जानते हैं इंडिया के अंदर कितनी ज्यादा, बल्कि तो मैं अभी देख रहा था कि हमारे गिर फॉरेस्ट हैं या दूसरे हैं. इंडिया का ये पूरी दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री है, या पूरी दुनिया को ले लीजिए कि यहाँ पर जो है वाइल्ड लाइफ का जो है इस पे जो है इसका एक्सटेंशन जो है बड़ा तेजी से हो रहा है. In the recent past, I have studied about 500 species of the land animals. They are on the brink of the extinction. This is a very sorrow state of the state. Plastic pollution के बारे में हम जानते हैं. This is a very, very important thing because shockingly, and recently we have found in the science studies or the research, there is about 91% of all plastic that has been made is not recycled. It is going in the seas and the oceans and the different places. So this, considering the plastic takes away 400 years to decompose, you can realize. So biodegradable, non-biodegradable, the things are there. Deforestation का हम जानते हैं, इतनी तेजी से के deforestation हो रहा है, जिसका one of the main reasons is also agriculture. और agriculture भी चाहिए, तो it is very ironic. आखिरी में there are many things, in fact I can quote, which are causing and effect and putting a lot of alarming pollution in the environment is air pollution. Air pollution को हम जानते हैं, बल्कि मैं आपके सामने एक छोटा सा, आप देख रहे हैं कि 2020 और 21 का यह करीबन सवा साल होने वाला है कि किस तरीके से जो हमारा चाइना से स्टार्ट हुआ और किस तरीके से कोविड-19 या कोरोना इस तरीके से फैला है कि लॉकडाउन हो गया. लॉकडाउन होने में सब बंद हो गए. ये ऐसी अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जिस पे कि हम तमाम लोग जो है, हमें चकमा आ गया है. चकमा मतलब सरप्राइजिंगली वी आर शॉकिंगली वी हैव टेकन अ बैक. मैं आपको बताना चाहूंगा, घर में बैठ के मैं तसव्वुर कर रहा था, आई वाज जस्ट थिंकिंग, और मुझे एक शायर ने बड़ी खूबसूरत नज्म लिखी है. उसने कहा, जब इतना भारी एटमॉस्फेयर हो गया कि सांस नहीं ली जा रही, ब्रीदिंग प्रॉब्लम इज देयर, आई कैनॉट मीट अदर्स, आई कैनॉट सी अदर्स, आई कैनॉट टच अदर्स. अरे सोशल डिस्टेंसेस तो हो ही नहीं सकता. आप फिजिकल डिस्टेंस जरूर रख सकते हैं, ये बड़ी गंदी टर्म है. सोशल डिस्टेंस तो बहुत खराब है, शारीरिक रख लीजिए आप, फिजिकल है. और 2 गज की दूरी बोल दी. चलिए, सांस लेना भी सजा लगता है. सुनिए कितनी खूबसूरत चीज है इस एनवायरनमेंट में कि सांस लेना भी सजा लगता है, अब तो मरना ही रवां लगता है. और देखिए, सरे बाजार में यारों की तलाश जो गुजरता है, खफा लगता है. बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब. देखिए, सांस लेना भी सजा लगता है और अब तो मरना भी रवा लगता है, और सरे बाजार में यारों की तलाश जो खफा.
जो गुजरता है खफा लगता है, इतने बंद गए हैं। सही बात। बल्कि 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 एक और सुनिए आप, जी जी फरमाइए सर, अर्ज करिए सर। फासले फासले डिस्टेंसेस, फासले ऐसे भी होंगे, फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा ना था। वाह वाह वाह, क्या बात। फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा ना था, और सामने बैठा था मेरे और वो मेरा ना था। वाह वाह, क्या बात है, वाह। और वो की खुशबू की तरह फैला था मेरे चारों तरफ, वो की खुशबू की तरह फैला था मेरे चार सू, मैं उसे महसूस कर सकता था, छू सकता ना था। और आप सुनिए, बड़ी कमाल की चीज है, आपको बड़ी रेलेवेंट नजर आएगी। अब आप मास्क लगाते हैं, मास्क एक फैशन बन गया है। जी इस पे सुनिए, यूं चढ़ा रखे थे तन पर अजनबियत के गिलाफ, या वाह कफन बोल दीजिए, या मास्क बोल दीजिए। जी, यूं चढ़ा रखे थे तन पर अजनबियत के गिलाफ, वरना कब एक दूसरे को हमने पहचाना न था। वेरी ट्रू। और फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था, और सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था। तो दोस्तों, देयर आर मेनी थिंग्स, आई कैन स्पीक मेनी थिंग्स. Finally, I would just like to say this is a very important, relevant subject that Vijay Lakshmi Vishwanath Dalvi College has picked up. मैं इस पे सिर्फ यही बताना चाहूंगा आखिरी में कि through education, particularly like at the university level, Pabrekar Saab has been the NSS liaison officer. NSS के थ्रू जो है नेशनल सर्विस स्कीम, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ग्लोबल वार्मिंग, health, hygiene, cleanliness, relevant. We have been doing several programs, but this is to be accelerated. और ये तो स्टूडेंट के साथ के हो गया, लेकिन नॉन स्टूडेंट जो कि ज्यादा पॉपुलेशन है, तो नेहरू युवक केंद्र संगठन NYKS के थ्रू हो रहा है। लेकिन खामोशी है, मैं बताना चाहूंगा, ये प्रॉपर काम जो होना चाहिए विगरसली, वो नहीं हो रहा है। आई कैन से बोल्डली बिकॉज आई हैव बीन देयर for 35 years actively in these affairs. एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज बहुत काम करा है इस पे कि भाई ऐसे कंपटीशन कराया, क्विज कॉन्टेस्ट कराई, ग्रुप सॉन्ग्स करे, थिएटर में माइम, स्किट, फाइन आर्ट्स में पोस्टर मेकिंग वगैरह, इनके थ्रू आप जनरेट कीजिए। यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल, ये तमाम एनवायरमेंटल अवेयरनेस के लिए जो तमाम काम कर रहे हैं। और जो पढ़ाई नहीं कर रहे, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, कि आप आंखें खोल के रखिए और कुछ दिल से निकालिए कि आपके गली मोहल्ले में आजू बाजू कोई ना कोई ऐसा एरिया होगा जहां आप गरीब बच्चे हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड है, उनको अवेयर कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए। कम से कम बोल के जो आपने सीखा है कि क्लीनलीनेस रखनी है, आग नहीं जलानी है फालतू जिससे धुआं उठे, और साफ सफाई रखनी है। These are all contributing to the wholesome and healthy environment. With all these things, there are many things I wanted to speak, लेकिन मेरा शुक्रिया और आदाब एक बार फिर से दलवी साहब और मेरे सारे दोस्तों को, those who are associated with this semi-virtual national conference on environment pollution, that let us have a brainstorming session throughout and cull up the best of points and make a strategy. And like Pabrekar Sahib has said, that after this conference, all the university and college officials must get together, put their heads, and let us discuss that how we contribute better this gigantic problem of environmental pollution. Thank you very, very much.